Hello friends, welcome to Economics Fundamentals. In our previous class, we have discussed about the collection of data, and under the collection of data we have talked about the primary data as well as secondary data, the difference between these two and the qualities of a good questionnaire as well. Now it's time to discuss about the census methods and the sampling methods of a survey. So as the word suggests, census method means it is a technique in which all the elements of population are inquired, or from all the elements of population we get the information. Like for example the population census, as we see that while the population census conducted, remember the last population census was conducted in 2011. It conducts after the interval of every 10 years. The first census was held in 1881 and the first census in independent India was in 1951, and now latest was the 2011, where the population of India stood 121.09 crore. Okay, so as I have written here on the board that the census means a survey which covers every element of the population is known as census. Now what is the meaning of population? जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स विच आर अंडर स्टडी. से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लास 11th की एवरेज हाइट लेना चाहता हूं तो क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स पॉपुलेशन कहलाएंगे. स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स विच आर अंडर स्टडी और अंडर कंसिडरेशन. So as far as the sampling method is concerned, a sample refers to a smaller group or section selected from population from which the relevant information is obtained. So sampling is derived from the word sample. यहाँ पर हम सिर्फ सैंपल ले रहे हैं. जैसे अगर वही मुझे एवरेज हाइट लेनी है उसी क्लास 11th की, तो मैं एक सबसे जो टॉलेस्ट लड़का है उसको ले लूँगा, एक जो मीडियम हाइट का है उसको ले लूँगा, और एक जो स्मॉलेस्ट सबसे कम हाइट का शॉर्टेस्ट जो वहाँ पर है क्लास 11th में उसको ले लूँगा. तीनों की हाइट को जोड़ करके 3 से डिवाइड करके एक मोटा मोटी एवरेज हाइट हम उसकी निकाल देंगे क्लास की. तो ये सैम्पलिंग मेथड हुआ. ओके, तो इन सेंसस मेथड वी डील विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, while in sampling method we pick only some samples from the given population. Then we came to know the required results. Now what the question arises as far as your examination is concerned, sometimes the question is asked distinguish between sampling method and census method. So before we understand the distinction between these two in details, first let me tell you its merits and demerits. सबसे पहले मैं आपको इनके फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ, दोनों की सीमाएं और दोनों के जो फ़ायदे हैं वो. तो पहले मेरिट्स आई हैव रिटन हियर. द मेरिट्स ऑफ सेंसस, इट इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट. ओके, व्हाई इट इज़ रिलायबल? Because all the elements have taken into consideration. So the results which will come out, that will be definitely reliable as well as accurate. इसका जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और एक्यूरेट होते हैं. दूसरा आपका है लेस बायस. लेस बायस का मतलब है ये पक्षपाती नहीं होता, कम से कम पक्षपाती होता है. अब अगर मुझे कहा जाता है कि भाई आपको एवरेज हाइट निकालनी है सैम्पलिंग मेथड से, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ अपनी मर्जी के 3 बच्चे भी वहाँ से चुन सकता हूँ. बायस हो सकता हूँ, जो बच्चा मेरे पास खड़ा उसी को बुला लूँ कि भाई आ जाओ, है ना. लेकिन इसके अंदर क्योंकि सारे इंडिविजुअल से आपको डील करना है तो यू विल बी लेस बायस. देन कॉम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन. कॉम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन है.
सपोज जैसे पॉपुलेशन सेंसस है, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन की एवरेज इनकम आपको निकालनी है, सो यू हैव टू अप्रोच ईच एंड एवरी हाउस होल्ड्स। फिर वहाँ पे कितने मेंबर ऑफ फैमिली हैं, कितने वर्किंग हैं, कितने नॉन वर्किंग है, कितने 10,000 से कम कमा रहे हैं, कितने 10,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, किन की एनुअल इनकम जो है वो 5 लाख है, किन की उनसे ज़्यादा है, किन की उनसे कम है। तो इस तरीके से वी केम टू नो द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बाय कंडक्टिंग दिस सेंसस सर्वे। In this way we can get the comprehensive information. Then more appropriate सेंसस मेथड, जहाँ पर सेंसस की ही ज़रूरत हो, जहाँ इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है, वहाँ के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है। से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन सेंसस, वहाँ पर आप सैम्पलिंग नहीं अपना सकते हैं, वहाँ आपको सेंसस मेथड ही अपनाना होगा। ओके, देन मोर representative, ओके। सो इट्स मोर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि ये आपको जो शो करेगा, जो रिप्रेजेंटेशन जिस पॉपुलेशन का करेगा, ये उसके लिए बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करेगा, क्योंकि इसने सभी एलिमेंट्स को अंडर स्टडी, अंडर कंसिडरेशन रखा है। बट जैसे कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो उसी तरीके से सेंसस मेथड भी परफेक्ट नहीं है। इट हैज़ इट्स लिमिटेशंस एज वेल, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। तो वो सीमाएं क्या हैं वो भी देख लेते हैं। ये कॉस्टली है। कॉस्टली कैसे है? इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ इन्यूमरेटर, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। भाई आपको अगर उस पर्टिकुलर रीजन में हाउस होल्ड्स की एवरेज इनकम निकालनी है, सो यू हैव टू अप्रोच ईच एंड एवरी हाउस होल्ड्स। तो वहाँ उसको आपको नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स आर रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेटर्स ज़्यादा चाहिए आपको। सो इट विल इनकर लॉट्स ऑफ कॉस्ट and it will consume lots of time. So that is why second limitation is more time consuming. So पहला ये मेथड कॉस्टली है, दूसरा मोर टाइम कंज्यूमिंग है। बिल्कुल आपको रियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो करनी है, वहाँ जाना है, पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, पर्टिकुलर पर्सन से मिलना है, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एंड नॉट एप्लीकेबल टू इनफाइनाइट यूनिवर्स। अगर बहुत ही बड़ा यूनिवर्स मीन्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बड़ा है तो भी आप इसको जो है, अगर ये इनफाइनाइट है तो वहाँ पर भी इट विल बी नॉट एप्लीकेबल। ऐसे केसेस में भी आप जो है जो सेंसस मेथड है उसको, उसकी बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस या बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं रह जाएगी। अब हम सैम्पलिंग मेथड को देख लेते हैं। सैम्पलिंग मेथड में हम क्या है कि सैंपल्स का चुनाव करते हैं। तो इसमें इसके मेरिट्स अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिकल मेथड है। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि इसमें ह्यूज लेबर, मनी और टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो इकोनॉमिकल है। फिर रिलायबल एंड एक्यूरेट है। देखिए रिलायबल जो है यहाँ पर भी है ना, आप देखेंगे यहाँ पर ये रिलायबल है, इसकी फर्स्ट फीचर है। यहाँ पर ये रिलायबल होगा अगर आपने सैंपल जो है वो बहुत ही स्मार्टली, और जो आपका सैंपल है वो जस्टिफाइड है। जैसे मैंने आपको क्लास 11th का एग्जाम्पल दिया था, अगर मुझे एवरेज हाइट लेनी है, 30 बच्चों की क्लास है, तो मैं चाहूँ तो 3 बच्चों के आधार पे भी बहुत ज़्यादा रिलायबल डेटा दे सकता हूँ। जो सबसे लंबा बच्चा है उसे ले लूँ, जो दरमियानी है इन बिटवीन उसको ले लूँ एवरेज हाइट का, और जो सबसे छोटी हाइट का उसको ले लूँ। तो ये हो गया आपका जो सिलेक्शन है वो जस्टिफाइड होगा। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही कोई 3 बच्चे उठा लूँ वहाँ से, हो सकता है वो तीनों ही छोटी हाइट के आ जाएं, हो सकता है तीनों लंबी हाइट के आ जाएं, तो जो रिजल्ट्स आएगा वो ज़्यादा रिलायबल नहीं आएगा। तो मोर साइंटिफिक है, मोर साइंटिफिक, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं। साइंटिफिक का मतलब है दे कैन बी टेस्टेड अगेन एंड अगेन। आप सैम्पलिंग मेथड से कोई भी कंक्लूजन आपने निकाला है, सो दैट कैन बी टेस्टेड बाय समवन एल्स, कोई उसको दोबारा से भी टेस्ट कर सकता है। मोर अप्रोप्रिएट फॉर वाइड एरियाज, जहाँ पर एरिया वाइड होगा
वहाँ के लिए ये जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यानी एक बड़े पॉपुलेशन साइज़ के लिए जो आप यहाँ नहीं कर पा रहे थे, आप यहाँ पर सैम्पलिंग के ज़रिए उसको जो है अंजाम दे सकते हैं। क्विक रिजल्ट्स, यस, बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस टाइम, टाइम कंज्यूमिंग है नहीं, तो इट प्रोवाइड्स क्विक रिजल्ट्स। भाई आपको एवरेज हाइट निकालने के लिए तो 30 बच्चों को अलग से उनकी सबकी हाइट लेनी पड़ेगी, देन वी एड अप टुगेदर एंड विल डिवाइड फ्रॉम 30, देन वी केम टू नो द एवरेज हाइट ऑफ क्लास 11th। और अगर सैम्पलिंग मेथड आप अपना रहे हैं, आप 3 या 4 बच्चों को ले लीजिए, उनकी हाइट मेजर कर लीजिए, उसके बाद उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए उसके सम को, तो वो आ जाएगी। तो दैट विल बी टाइम सेविंग प्रोसेस, तो क्विक रिजल्ट विल बी देयर। अब इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। पहली है लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब देखिए, क्योंकि एक तरफ तो आपने सभी एलिमेंट्स को पॉपुलेशन के कंसीडर किया सेंसस मेथड में, तो रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, लेकिन यहां पर लैक ऑफ एक्यूरेसी रहेगी। एक्यूरेसी का जो अमाउंट जो है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू सेंसस। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं किया है। सेकंड है रॉन्ग कंक्लूजन्स। अब जब आपका रिजल्ट ही सही नहीं आया है तो आपका कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी जो बाद में आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप जिस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, दैट विल बी रॉन्ग। सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर सैंपल। देखिए, सैम्पलिंग मेथड को यूज करने के लिए वी मस्ट possess certain qualities, expertise. तो एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड while we are dealing with the sampling methods. सेंसस में एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं, उतनी नहीं है। आप जा रहे हैं, हर किसी से सवालात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और देन वी केम टू नो द रिजल्ट्स और कंक्लूजन। बट इन दिस केस वी हैव टू सेलेक्ट सच अ सैंपल which will reflect the real picture of the population, जो वाकई में रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का, ऐसा सैंपल हमें चुनना है। उसके लिए वी रिक्वायर्ड सर्टेन क्वालिटीज, सर्टेन एक्सपर्टीज। तो इसलिए इम्प्रॉपर अगर सिलेक्शन हो गया सैंपल का तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन सेंसस इज डिजायरेबल। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको सेंसस मेथड ही अपनाना पड़ेगा, जैसे पॉपुलेशन सेंसस, वहाँ पर आप सैम्पलिंग के ज़रिए से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये नहीं चल पाएगा, वहाँ आपको जो है वो सेंसस ही अपनाना होगा। फिर स्मॉल साइज़ ऑफ यूनिवर्स। अगर जो यूनिवर्स है आपके पास, टोटल पॉपुलेशन है, वो उसका साइज़ ही छोटा है, मान लीजिए आपको 1 हाउस होल्ड या 10 हाउस होल्ड की एवरेज इनकम निकालनी है, तो वो तो आप वहाँ जाकर ही निकाल सकते हैं, आप उनमें से 1 या 2 सैंपल थोड़ी लेंगे। तो अगर आपके यूनिवर्स का साइज़ या पॉपुलेशन का साइज़ ही छोटा है तो वहाँ के लिए सैम्पलिंग मेथड नहीं एप्लीकेबल होगा। फिर डाइवर्स आइटम, या जिसे हम और क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। अगर हमारा जो डेटा है वो हेट्रोजीनियस है, यानी अलग अलग तरीके का है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें सैम्पलिंग मेथड हम नहीं लगा पाएंगे। जैसे अब अगर मैं कहूँ कि हमें भारत की जो है वो भारत के जो स्टेट्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम निकालनी है, सभी स्टेट्स की एक एवरेज पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, सो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैंने इस सैम्पलिंग मेथड अपना लिया और मैंने उसमें पंजाब ले लिया, हरियाणा ले लिया, या जो स्टेट्स प्रॉस्पेरस हैं बस उन्हीं को लिया, तो वो तो ज़्यादा आ जाएगी इनकम। या मैंने मान लीजिए बीमारू स्टेट, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, वही ले लिया, जैसे बिहार है, झारखंड है, तो भी इनकम कम हो जाएगी। तो डेटा जो है वो रॉन्ग कंक्लूजन देंगे। तो डाइवर्स आइटम्स जो होते हैं उनके लिए आप सैम्पलिंग नहीं अपनाएंगे, वहाँ पर हमें सेंसस को ही प्रेफरेंस देना होगा। तो अब इस तरीके से आप दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। मान लिए क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो करिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप मीनिंग का डिफरेंस बता देंगे कि सेंसस मेथड में हम सभी एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, सैम्पलिंग मेथड में हम कुछ ही चुनिंदा एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। दूसरा आप बताएंगे कि इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, इसकी रिलायबिलिटी कम है, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। उसके बाद आप लिखेंगे इट इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन
the population size is infinite, it may be applicable even in the population size of infinite, है ना। यहाँ पर लिख देंगे it can be done in heterogeneous form of data, अगर आपका या डाइवर्स आइटम्स है तो वहाँ भी किया जा सकता है, ये वहाँ नहीं किया जा सकता है। तो जो भी लिमिटेशंस हैं वो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं, यहाँ इसकी लिमिटेशंस इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाती हैं। इस आधार पर हम इसे डिस्टिंग्विश बहुत आसानी से कर सकते हैं। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, देन आई विल टेल यू द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग्स। So viewers, here I am going to tell you about the types or methods of sampling. It has two types, random sampling as well as non-random sampling. Now what is the meaning of random sampling? Random sampling क्या होती है? Random sampling is a method of sampling in which all the items of the population have equal chance of being selected. यानी यहाँ पर let me give you an example. Suppose Indian government wants to know the effect of rise in petrol over the 300 households of a particular locality. अगर भारत सरकार को एक निश्चित एरिए के 300 घरों में से उसको जो है पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ने पे क्या असर पड़ा उनके कंजम्पशन पे ये जानना है, तो और वो रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करती है, वो वहाँ से 10 घरों का सिलेक्शन करती है, सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रही है। अगर वो 300 घरों से पूछेगी तो क्या हो जाएगा? सेंसस मेथड हो जाएगा। वहाँ उसने 10 घर सेलेक्ट करने हैं तो वो 300 घरों के नाम उसमें लिखे जाएंगे, एक स्लिप बना दी जाएगी, 300 घरों के नाम उसमें लिख दिए, देन दे विल टेक अ ड्रॉ, लॉटरी की जाएगी, तो उस लॉटरी में कोई भी 10 नाम आ जाएंगे। सो उन 10 नामों में आने की, उन सभी 300 नामों में से 10 नाम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है 10/300। सो इसको इसलिए हम प्रोबेबिलिटी मेथड भी कहते हैं। ओके, और उसी तरीके से जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। ओके, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये हो गया आपका, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड दिस वन इज ऑल्सो नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, ये इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्योंकि इसमें सभी जो आइटम है उनके चुने जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। दैट विल बी अप टू द कन्वीनियंस एंड सिलेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर की अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से होगा। जैसे मुझे अगर जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आप इन 300 घरों की एक एवरेज इनकम निकालिए सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करके, तो मैं अपने जो नियर एंड डियर होंगे, जो आसपास मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोग अगर हैं तो उनको चुन लूँगा और उनसे पूछ करके निकाल दूँगा। सो आई विल पुट लेस एंड लेस एफर्ट और आई विल बी बायस। दैट इज़ वाई ये इसमें बायस होने के चांसेस होते हैं जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। सो समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो नाउ आई होप you are getting and you have understood what I exactly mean. Now the question arises that which method is appropriate, census or sampling? ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी आ रहा होगा ना, आ रहा है ना। सो अगर ये पूछा जाए कि कौन सा मेथड दोनों में बढ़िया है, तो ऑफ कोर्स सैम्पलिंग मेथड विल बी प्रीफर्ड एज इट इज अ साइंटिफिक मेथड। Even you will be surprised to know that even the authenticity or the reliability of census method will be judged by applying the sampling method. जब सेंसस से हम कोई सर्वे करते हैं तो उसको भी सैम्पलिंग से ही जज किया जाता है कि वेदर इट्स रिजल्ट्स आर एक्यूरेट और नॉट। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच मैथडोलॉजी और विच मेथड ऑफ सर्वे इज़ बेटर, सो डेफिनेटली सैम्पलिंग मेथड इज़ बेटर। आई होप you are getting. So thank you for watching. Thank you.